Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 5 of mathematical statistics. In the last lecture, we discussed mean, the average value or the expected value of a random data, then variance and standard deviation. Then we discussed the population and the samples, how a sample data can represent the characteristics or parameters of the population. So we discussed the sample variance, sample standard deviation, sample space, and how to systematically find the sample space. We learned how to draw a tree diagram, and then we briefly discussed the event. Event. An event is a subset of a sample space. If we take this example, for instance, we may be interested in the event A, that the outcome when a die is tossed is divisible by 3. So the outcome of a die is, it can be 1, 2, 3, 4, 5 and 6, because a die is a cube which has 6 faces, and each face can come up, any face can come up. The sample space for tossing a dice will have all possible outcomes. So we write the sample space S1 as braces and all the values which are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 braces close. In this sample space, we find those elements which are divisible by 3. 1 can't be divided by 3, so we rule it out. 2 again can't be divided by 3, so rule it out. 3 can be divided by 3 and we get answer 1, which is again a number. 4, we get a fraction. 5, we again get a fraction when we divide 5 by 3. And 6, when we divide by 3, we get 2, which is again a whole number. So in this sample space, we find that elements which are divisible by 3, which is an event A, and we write it as braces open 3, 6. Next up, an event may be a subset of a sample space, or it can have all the values of the sample space, or it can be a null set. That means none of the elements of the sample space are present in the event. That implies, indirectly अगर इसको सोचा जाए तो जो sample space है उसमें तमाम values, तमाम outcomes मौजूद होती हैं और उसमें null set भी मौजूद होता है. Although हम उसको लिखते नहीं हैं, that means कि अगर एक इवेंट हम डिफाइन करते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो वो भी सैंपल स्पेस का ही हिस्सा है इनडायरेक्टली. सो और अ सबसेट ऑफ एस कॉल्ड द नल सेट एंड डिनोटेड बाय सिंबल phi which contains no element at all. अगर एक इवेंट ए लिया जाए और मैं उसको लिखना चाहूँ कि ये नल सेट है, तो मैं इसको यूं भी लिखते हैं इन सम केसेस और इसको यूं भी लिख सकते हैं phi. फिर हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए with respect to sample space S is the subset of all elements of S that are not in A. Previous example को अगर देखें आप, वो क्या थी कि हमारे पास जो sample space थी S1 वो थी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जो कि एक डाई को रोल करने से जो नंबर आ सकते हैं, पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं. किसी टाइम किसी दफ़ा 1 आ जाएगा, किसी दफ़ा 3 आ जाएगा, किसी दफ़ा 2 आ जाएगा. तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं. और इवेंट ए जो था वो divisible
3 था, तो वो बनता था हमारे पास 3 and 6। अब अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करूं तो वो बनेगा वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं हैं मगर S1 में मौजूद है। तो हम 3 को भी काट देंगे क्योंकि 3 ए में मौजूद है और 6 भी मौजूद है, तो 6 को भी काट देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 1 2 4 and 5। लेट्स से एक मेरे पास इवेंट बी है विच इज अ नल सेट, तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेट्स राइट इट डाउन। वो तमाम एलिमेंट्स S1 के जो कि बी में मौजूद नहीं हैं, तो 5 अगर निकाल दें, नल सेट निकाल दें, तो बी प्राइम इज 1 2 3 4 5 6। तो अगर बी नल सेट था तो बी प्राइम में वो तमाम एलिमेंट्स जो एस में मौजूद हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। सो इसका मतलब है ये बी प्राइम जो है इटसेल्फ S1 के बराबर हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्स के हवाले से आप। तो मैं अगर रिपीट करूं इस सारी बात को, द कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू एस is a subset of all elements of S that are not in A। तमाम के तमाम एलिमेंट्स S के जो कि A में मौजूद नहीं हैं। और कॉम्प्लीमेंट को डोनेट कैसे करते हैं हम, डिनोट हम उसको A प्राइम लिखते हैं। अगर मेरे पास C एक इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मैं लिखूंगा C प्राइम। D इवेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा डी प्राइम। फिर हम और क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं इवेंट्स के साथ। वी नाउ कंसिडर सर्टेन ऑपरेशंस विद इवेंट्स दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इवेंट्स। क्या मतलब, हम कुछ ऑपरेशंस इवेंट्स पे करेंगे और वो जन्म देंगे नए इवेंट्स को। These new events will be subset of the same sample space as the given event। खूबसूरत बात यह है कि जब एक नया इवेंट हम जनरेट करते हैं वो उसी सैंपल स्पेस का ही हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में ऑल्दो हमारे पास जो स्टेटमेंट थी बड़ी वेग थी कि वो नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 3, तो अगर हम कहेंगे नंबर्स डिवाइडेड बाय 3, तो अगर हमें यहाँ पे ना बताया जाए कि वो होल नंबर्स होने चाहिए, तो 1/3 भी एक नया नंबर बनता है, 2/3 भी बनता है, 3/3 भी, 4/3 भी, ऑल दो फ्रैक्शंस में हैं बट कुछ नंबर्स तो बन रहे हैं। मगर क्योंकि वो तमाम नंबर्स ओरिजिनल जो सैंपल स्पेस है उसका हिस्सा नहीं थे, इसलिए हम उनको इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ 3 और 6 को करते हैं। तो अगर स्टेटमेंट ये होती कि फाइंड एन इवेंट ए विच इज डिवाइडेड बाय 3, तो हम तमाम नंबर्स तो लिख सकते थे मगर जो एक्चुअल इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस का सबसेट ही होना चाहिए। इन द टॉसिंग ऑफ डाई वी माइट लेट ए बी द इवेंट दैट एन इवन नंबर अकर्स एंड बी द इवेंट दैट अ नंबर ग्रेटर देन 3 शोज। सो अब ये दो इवेंट्स हमने डिफाइन किए हैं। ए वो नंबर जो कि इवन है और बी वो जो 3 से बड़े हैं। तो सैंपल स्पेस हमारी वही है 1 2 3 4 एंड 5। तो इवेंट ए जो बन रहा है इवन नंबर्स का वो बनता है 2 4 एंड 6, और इवेंट बी जो है वो बनेगा 3 से बड़े नंबर्स जो कि सैंपल स्पेस का हिस्सा है। और सैंपल स्पेस किस चीज की है, डाई को रोल करने की। तो वो बनती है 1 to 6 तक आती है, और 3 से बड़े डिजिट्स जो होंगे, नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, 4 5 एंड 6। अब ये दोनों जो हैं ए बी और बी बी सबसेट ऑफ द सेम सैंपल स्पेस है। यहां पे देखें बी को आप अगर पढ़ें, बी
the event that a number greater than 3. तो अगर सैंपल स्पेस डिफाइंड ना होती, यही स्टेटमेंट हम लें और सैंपल स्पेस चेंज कर दें. अब अगर सैंपल स्पेस मेरी ये होती 1 2 3 4 5 अप टिल 100, तो बी इस स्टेटमेंट के हिसाब से बी की क्या स्टेटमेंट है, द इवेंट दैट अ नंबर ग्रेटर देन 3 शोज. तो अब बी जो इवेंट होगा वो 4 5 6 अप टिल 100 हो जाएगा. मगर इन द प्रीवियस एग्जांपल क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस सिर्फ और सिर्फ क्या था, S1 क्या था, 1 2 3 4 5 और 6. सो बी जो वो नंबर्स जो कि 3 से बड़े हैं वो सिर्फ 4 5 और 6 थे. इससे आगे नंबर जो हैं 7 8 9 10 अप टिल इन्फिनिटी वो नहीं लिखते क्योंकि ये सैंपल स्पेस का हिस्सा नहीं है. तो इसलिए इतनी स्टेटमेंट ही काफी है, बी द इवेंट दैट अ नंबर ग्रेटर देन 3 शोज. तो ये हर चीज जो है वो सैंपल स्पेस के रेफरेंस से यहां पे हमें बताई जा रही है. तो इसको ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट अप यही एग्जांपल ले लें हम. अब अगर देखें ए और बी हमने लिख लिया, जो कि ए वो इवन नंबर्स थे और बी वो द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 3. So A is 2, 4 and 6 and B is 4, 5 and 6. अब सैंपल स्पेस वही है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If on a given toss, यहाँ पे लिखा हुआ है given toss 4 और 6 comes. हमने एक दफा डाई को टॉस किया, अगर 4 आ जाए मेरे पास या 6 आ जाए, then this event which is 4 and 6, we can say that both A and B have occurred. यानी कि अगर 4 आता है तो 4 A में भी मौजूद है और B में भी है. अगर 6 आता है तब भी 6 जो है वो A में भी मौजूद है और B में भी मौजूद है. तो इसका मतलब है अगर C इवेंट आ जाए 4 and 6, तो हम कह सकते हैं कि ए भी अकर हुआ और बी भी अकर हुआ. इसको आसान लफ्जों में अगर मैं यूं देखूं कि 4 लोग एक गेम खेल रहे हैं और जिसमें ए जो है वो कहता है कि अगर 2, 4 और 6 आए तो मैं जीत जाऊंगा, बी कहता है अगर 4, 5 और 6 आए तो मैं जीत जाऊंगा. कोई और शख्स है डी जो कहता है अगर 1, 3, 5 आए तो मैं जीतूंगा. और सो हम ए को कहते थे कि 2, 4 and 6, बी 4, 5 and 6 और डी जो हैं वो कहते हैं 1, 3 and 5 और E जो हैं वो कह रहे हैं 1, 2 और 3. अब जब हम डाई को रोल करते हैं तो अगर मेरे पास 4 आता है तो देखें कौन कौन जीता, ए में भी 4 मौजूद है और बी में भी. तो ए और बी दोनों विनर हो गए, मगर डी और ई विनर नहीं हुए. सिमिलरली अगर 6 आए तो फिर भी ए और बी विनर हैं और डी और ई में कोई भी नहीं है. हाँ, अगर 5 आ जाए तो बी में भी 5 मौजूद है और डी में भी 5 मौजूद है. इसका मतलब है बी और डी दोनों ही विनर हैं, दोनों के ही एलिमेंट्स शो हुए हैं. अगर आप इस स्टेटमेंट को अब दोबारा पढ़ें, इफ ऑन अ गिवन टॉस 4 or 6 comes, that is event C which is 4, 6,
then we say that both A and B have occurred, which is just the intersection of A and B. यानी कि A और B में ये दोनों कॉमन हैं, इंटरसेक्शन जो हमने डिफाइन कर दिया. तो इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? लेट M be a set which event or a event which has A, E, I, O, U, तमाम vowels इसमें लिखे हुए हैं, and N is equal to an event which contains R, S and T. Then M intersection N, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो डिफाइंड है एज अ नल सेट. वाई? बिकॉज कोई ऐसा एलिमेंट इन द इवेंट M और कोई ऐसा एलिमेंट इन द इवेंट N नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में कॉमन हो, इसलिए ये नल सेट होता है. दैट इज M एंड N हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन and therefore cannot both occur simultaneously. अब कोई भी अल्फाबेट आता है सैंपल स्पेस में से, तो उसमें या तो M जीत सकता है या N जीत सकता है, मगर दोनों simultaneously कभी भी नहीं जीत सकते. For certain statistical experiments, it is by no means unusual to define two events A and B that cannot both occur simultaneously. The events A and B are then said to be mutually exclusive. The event A and B can then be said to be mutually exclusive. एक सिंपल सा इवेंट देखते हैं हम डेली लाइफ का कि let's say A is an event, it's raining, कि बारिश हो रही है, and B is the event, no clouds, आसमान पे कोई क्लाउड नहीं है, नो क्लाउड ऑन स्काई. अब देखें अगर बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली बारिश क्लाउड से होगी, तो बी क्या हो गया इवेंट? वो इवेंट जो कोई क्लाउड नहीं है स्काई में. सो ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते कि बारिश भी हो रही हो और आसमान पे कोई बादल भी ना हो. तो हम इनको क्या कहेंगे? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा. इसी तरह अब मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप कहें नाइट टाइम, इवेंट डी को हम कर दें नाइट टाइम और ई को कर दें सनी, के बादल सूरज चमक रहा है. तो अब ये दोनों इवेंट जो हैं साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. इसी तरह अब और भी चीजें हैं कि अगर रोल ऑफ डाइस है विच इज नंबर 1 to 6 आता है, तो अगर हमें ये कहूं कि एक इवेंट है और एक ऑड सेट बना लेते हैं, ए को हम इवन आउटकम्स कह देते हैं और बी को ऑड आउटकम्स कह देते हैं. तो जब भी डाई को रोल करेंगे हम, तो कोई नंबर भी आ सकता है 1 से लेकर 6 तक, तो या तो वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा. दोनों ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली विनर्स नहीं हो सकते, तो हम इनको कहेंगे दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. आप और भी एग्जांपल सोच सकते हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों. देन वी डिफाइन इंटरसेक्शन of events. Two events A and B are mutually exclusive or disjoint if A intersection B is a null set. कि कोई भी एलिमेंट उनका कॉमन नहीं है तो वो null set बन जाएगा. That is A and B have no elements in common. जैसे हम पिछली एग्जांपल में था नाइट टाइम और सनी दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, बारिश भी हो रही हो और आसमान पे बादल भी ना हो, ये भी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता. इसी तरह आउटकम ऑफ रोलिंग अ डाइस अगर इवन है तो वो ऑड नहीं हो सकता, ऑड है तो इवेंट नहीं हो सकता, इवन नहीं हो सकता. इसलिए वो दोनों इवेंट्स जो हैं डिफाइन करते हैं. अगर हम एक ऑड इवेंट डिफाइन करें ए और बी को डिफाइन करें कि वो एक इवन इवेंट है, इवन आउटकम है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. Let's see with the event that a person selected at random in an internet cafe is a college student, and let M be the event that the person is a male. तो क्या हुआ?
हम इंटरसेक्शन को स्टडी करने के लिए एग्जांपल देख रहे हैं कि एक कैफ़े है, इंटरनेट कैफ़े में, वहाँ पे कोई कॉलेज स्टूडेंट है और दूसरा इवेंट M जो है वो मेल है. देन C इंटरसेक्शन M इज एन इवेंट ऑफ ऑल मेल कॉलेज स्टूडेंट्स इन द इंटरनेट कैफ़े. जितने भी इंटरनेट कैफ़े में मेल स्टूडेंट्स मौजूद होंगे वो C इंटरसेक्शन M में आ जाएंगे. तो C क्या है? वो स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज, वो लोग इंटरनेट कैफे में जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और M मेल हैं. तो ये एक इंटरसेक्शन बन गया. यूनियन ऑफ इवेंट्स. द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स A and B denoted by the symbol A union B is the event containing all the elements that belong to A or B or both. So let A be an event which is equal to A, B and C, and B A be an event which is B, C, D, E. तो फिर A यूनियन B क्या होगा? तमाम एलिमेंट्स A के भी और B के भी मौजूद होंगे. तो A हमने लिख लिया यहाँ पे A यूनियन B में, B भी लिख लिया, C भी, ये A के तमाम एलिमेंट्स यहाँ तक आ गए. फिर हम इवेंट B में जाते हैं तो उसका पहला एलिमेंट B है, वो ऑलरेडी क्योंकि एंटर्ड हुआ हुआ है तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा जाता. फिर C को देखते हैं तो C भी मौजूद है तो इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे हम इसको. D को देखा तो D भी यहाँ नहीं था तो हमने D लिख लिया यहाँ पे. फिर E को देखते हैं तो E भी यहाँ पे ऐड कर लिए. तो अब A यूनियन B में दोनों A और B के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं. आप इसी एग्जांपल में इंटरसेक्शन B भी देख सकते हैं. अगर A इंटरसेक्शन B लिखूं मैं तो वो क्या बनेगा? वो एलिमेंट्स जो A में भी मौजूद हैं और B में भी मौजूद हैं. A जो है स्मॉल a वो B में मौजूद नहीं है, स्मॉल b मौजूद है तो हम इसको लिख लेते हैं. स्मॉल c दोनों में मौजूद है, वो भी लिख लेते हैं. और तो A में और कोई भी नहीं है तो इसलिए कोई और भी B में नहीं होगा जो कि इसके साथ मौजूद हो. तो A इंटरसेक्शन B जो है वो B और C दो ही एलिमेंट्स बचते हैं. यहाँ पे मैं एक और चीज भी पूछता चलूं आपसे कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस एग्जाम्पल में, क्योंकि हमें S यानी कि सैंपल स्पेस इज नॉट गिवन, तो इसलिए हम A कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है. बिकॉज A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस जो कि A में मौजूद नहीं है. या आप इसको यूं भी सोच सकते हैं S माइनस A, यानी कि वो वाले एलिमेंट्स निकाल दें S में से जो कि A में मौजूद हैं तो बाकी का A कॉम्प्लीमेंट बनता है. यहाँ पे क्योंकि सैंपल स्पेस इज नॉट गिवन सो वी कांट डिफाइन अ A कॉम्प्लीमेंट. However, अगर मैं ये सैंपल स्पेस लिख दूं, it is A, B, C, D, E, F, G, small a, B, C up till G, then A complement will be A निकाल दें, B निकाल दें, C निकाल दें, will be D, E, F and G. ये वो एलिमेंट्स हैं ऑफ द सैंपल स्पेस जो कि A में मौजूद नहीं है, तब डिफाइन हो सकता है. तो इसका मतलब यह है कि A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सैंपल स्पेस की हमेशा जरूरत रहेगी. यूनियन ऑफ इवेंट्स. एक एग्जांपल देखते हैं हम. इफ M इज इक्वल टू इज एन इवेंट X such that X is between 3 and 9. इसका कैसे पढ़ते हैं इसे? M is an event X such that
इसको पढ़ते हैं सच दैट x is greater than 3 and less than 9. Similarly, n is an event y where y is from 5 to 12. तो इनका यूनियन लेना है. जब यूनियन लेते हैं m यूनियन n, तो मैं इसको एक अगर रियल लाइन से रिप्रेजेंट करूं, रियल लाइन आपको याद होगा क्या होती है, इट्स अ जिसमें तमाम रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो यहां पे कहीं अगर मैं एज्यूम कर लूं कि 3 है, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इवेंट जो m है विच इज x स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 9, तो 3 से थोड़ा आगे से ये शुरू होगा, तो ये 9 से पहले ख़त्म हो जाएगा, तो लेस देन 9 है और ग्रेटर देन 3 है. सिमिलरली y एक इवेंट है जो कि 5 से शुरू होता है और 12 तक, तो ये 5 के बाद से शुरू होगा और विल गो जस्ट बिफोर 12. तो जो टोटल इवेंट बन रहा है हमारा, जो कि दोनों का यूनियन है, ओवरलैपिंग मिला के, वो बनता है 3 से लेके 12 तक. सो यहाँ पे m यूनियन n वुड बी इक्वल टू z सच दैट z इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12. इसी में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंटरसेक्शन निकालें इसका, m इंटरसेक्शन n, तो it can be w such that w is greater than and less than, किस रेंज में होगा जी. इंटरसेक्शन देखें तो वो इंटरसेक्शन 5 से शुरू होती है जब दोनों ओवरलैपिंग आ जाती है अप टिल 9 तक, तो ये वाला एरिया जो है ये दोनों का कॉमन एरिया है. तो हम इसको लिखेंगे is greater than 5 and less than 9. तो ये आपने इंटरसेक्शन भी यहाँ पे स्टडी कर लिया. नेक्स्ट चलते हैं हम वेन डायग्राम को. इसके बारे में भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं, आज हम इस पे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस कैन बी इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली बाय मींस ऑफ वेन डायग्राम. कि एक रिलेशनशिप इवेंट्स का और सैंपल स्पेस का हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं. ये हम बनाएंगे और देखेंगे कैसे काम करता है. तो एक सैंपल स्पेस अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो उसमें हम इवेंट्स को भी शो करेंगे और इसी तरह. इन द वेन डायग्राम वी लेट द सैंपल स्पेस बी अ रेक्टेंगल एंड रिप्रेजेंट इवेंट्स बाय सर्कल्स drawn inside the rectangle. यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है सर्कल्स ड्रॉन इनसाइड द रेक्टेंगल, लाजमी नहीं है वो सर्कल्स हों, डिपेंड्स कि आपने वेन डायग्राम में कैसी शेप्स बनाना चाहते हैं, उससे इतना बड़ा मसला नहीं होता. मैं अक्सर यूं भी कर लेता हूं कि अगर मैं इस डाइस वाली ही सैंपल स्पेस बनाऊं तो मैं कहता हूं कि ये एक सैंपल स्पेस है जो कि एक डाई की रोलिंग को रिप्रेजेंट करती है, और मैं इसमें 3, 4, 5, 6, तो अगर मैं कहूँ ये पहला खाना 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है और ये 6 का है, तो ये पूरी सैंपल स्पेस यहाँ पे शो हो रही है. अब अगर मैं एक इवेंट ए डिफाइन करूँ विच इज let's say 1, 2 and 3 and event B which is 3, 4 and 5, तो मैं इवेंट A को स्लांट से कवर करूं तो ये सारा मेरा 1, 2, 3 का ये इवेंट A बनता है. तो बेसिकली दिस होल थिंग इज A
एंड बी को देखें तो 3 4 5 बनता है। तो बी के लिए हम कलर चेंज करते हैं अगर, तो वो बनेगा 3 से लेके 5 तक का जो सारा एरिया है इसको हम बी कह सकते हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, मगर जनरली हम इसको ग्राफिकली नंबर्स तो नहीं लिखते, हम इसको यूं कर लेते हैं। अगर इसको देखा जाए क्योंकि 3 कॉमन है दोनों में, तो हम वेन डायग्राम में हम यूं भी शो कर लेते हैं कि एक ए है और बी है और उसमें एक जगह थोड़ी सी कॉमन है जिसको जो कि 3 को रिप्रेजेंट करती है। यूं भी हम इसे लिख लेते हैं। तो बेहतर ये होता है कि हम सर्कल्स ही बनाएं, क्योंकि यह सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चलें आप अगर, तो हम एक वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो दिस होल थिंग इज अ सैंपल स्पेस। इसमें हम एक सर्कल बनाते हैं इवेंट ए, इसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि ए का हिस्सा हैं। सिमिलरली फिर हम एक और ड्रॉ करते हैं बी एंड सी, जो कि बी और सी इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन अगर इवेंट्स को देखें तो ग्राफिकली हमें नजर आ रहा है कुछ ओवरलैपिंग्स भी हैं। ए और बी में भी ओवरलैपिंग है, सी और ए में भी ओवरलैपिंग है, और सी और बी में भी ओवरलैपिंग है। कुछ रीजन ऐसा जो तीनों में ओवरलैपिंग है। अब हम इसको इस पे कुछ ऑपरेशंस शो करते हैं। लेट्स से सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने मुख्तलिफ रीजन्स लिख लिए। इस रीजन को 1 लिख लिया, यानी कि ये बेसिकली जो 1 लिखा हुआ है ये इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह आप 2 आप समझ गए होंगे कि 2 जो है वो इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 इस वाले को कर रहा है, 4 5 ये जो रिमेनिंग रीजन है सी का इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 6 ये रिमेनिंग रीजन बी का जो कि ओवरलैपिंग से बाहर है, और 7 जो है वो ए का जो रिमेनिंग रीजन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इस पर चलें तो कुछ ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन एरिया है, तो ए और बी का कॉमन एरिया अगर देखें तो ये सारे का सारा है। और अगर हमने जो नंबर्स दिए हुए थे वो क्या थे, 1 और 2। तो ए इंटरसेक्शन बी इज रीजन 1 और 2। तो आप जब भी ड्रॉ करेंगे, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को शो करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह शो कर देंगे कि ये कंबाइंड रीजन है जो ए का और बी का। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो रीजन अगर आप देखें तो ये बी और सी का कॉमन रीजन है सारे का सारा। और इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये रीजन 1 है और रीजन 3 है, रीजन 1 एंड रीजन 3 ये हमने यहां पे लिख दिया। ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी देखें, कंप्लीटली ए एंड कंप्लीट सी इसमें शामिल है। अब इसमें रीजन काउंट करें तो रीजन 1 भी मौजूद है, इसमें 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी, 5 भी और 7 भी। सो 1 2 3 4 5 एंड 7 इसमें मौजूद हैं। सिमिलरली वेन डायग्राम हम अब कॉम्प्लीमेंट्स की ड्रॉ करें अगर बी इंटरसेक्शन ए, तो इसमें सबसे पहली बात हमें देखनी है कि बी इंटरसेक्शन क्या है। ये नई चीज़ है, जरा ध्यान से देख लें कि लेट्स से मैं सैंपल स्पेस ये बनाता हूँ, उसमें ये जो रीजन है सारा का सारा सर्कल ये बी को रिप्रेजेंट करता है। तो बी
इंटरसेक्शन वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो सैंपल स्पेस में तो मौजूद हैं मगर बी में मौजूद नहीं हैं। बी के अलावा जो एलिमेंट सैंपल स्पेस में मौजूद हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, तमाम का तमाम सैंपल स्पेस सिर्फ बी को हम छोड़ देंगे। इसमें बी मौजूद नहीं है, बाकी जो शेडेड एरिया स्लांट से जो मैं लाइनों से शेड किया ये सारा का सारा क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो अब आप बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए को देखें तो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में वो तमाम एरिया मौजूद है जो बी के अलावा है, तो यहां पे नजर आ रहा है। और ए क्या था, दिस वाज ए। तो इंटरसेक्शन लेना है ए का और उसका। तो आप अगर देखें तो इंटरसेक्शन लेना है तो ए का वो रीजन और बी का स्लांट वाला रीजन बी कॉम्प्लीमेंट का वो शामिल होगा। तो ये वाला रीजन बनता है जो कि ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए है, विच इज रीजन नंबर 7 and 4 and 7। सो दोबारा अगर इसको रिपीट करें तो बी इंटरसेक्शन पहले हमने एज्यूम किया जो कि तमाम के तमाम रीजन है जो बी के अराउंड है और सैंपल स्पेस में है, और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो रीजन 4 and 7 आ गया। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप ए इंटरसेक्शन बी देख सकते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी का रीजन जो बनता है वो ये बनता है सारे का सारा, और फिर इसको इंटरसेक्शन सी देखें तो सी के साथ जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कॉमन एरिया जो सी का भी है और वो सिर्फ और सिर्फ 1 बनता है। इस प्रॉब्लम को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जो है किसी और तरीके से भी देख सकते हैं। वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप पहले बी इंटरसेक्शन सी को हैंडल कर लें, पहले इसको कैलकुलेट कर लें। तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ये वाला रीजन बनता है, और फिर जब ये स्लांटिंग रीजन को, रेड वाले रीजन को ए के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर ये वाला रीजन बनता है, विच इज अगेन रीजन नंबर 1। सो जब इस तरह से लिखा हो तो आप पहले किसी को भी कर सकते हैं, पहले 2 को डील कर लें और फिर तीसरे के साथ उसको इंटरसेक्ट कर लें। अब अगर आप देखें ए यूनियन बी, यहां पे ब्रैकेट पहले से गिवन है कि ए, पहले हमने ए यूनियन बी को कैलकुलेट करना है और फिर उसको इंटरसेक्ट करना है विद सी। तो ए यूनियन बी, ये ए पूरे का पूरा और बी कंप्लीटली आ जाएगा। तो इसमें जो इंटरसेक्ट करेंगे हम 4, जब सी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो ए का ये हिस्सा 4 1 वाला और बी का ये 3 वाला उसमें शामिल हो जाएगा। आई थिंक इसमें यहाँ पे मिसिंग है विच इज सी कॉम्प्लीमेंट। सो इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसको सी कॉम्प्लीमेंट करूं तो इट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी तो ठीक है, सारे का सारा रीजन जो है ए का भी और बी का भी शामिल है उसमें। इसको जब ए यूनियन बी तो हमने रेड लाइन से शो कर दिया। जब सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो सी के अलावा रीजन है। अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करूं तो ये सारा तमाम रीजन जो कि सी में तो मौजूद नहीं है मगर सैंपल स्पेस में मौजूद है। तो सी को छोड़ के बाकी तमाम रीजन को मैंने वर्टिकल लाइन से ड्रॉ किया।
तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जो रीजन बचता है जो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा 7, 2 एंड 6। तो 7, 2, 6 एंड 7 वो रीजन है जो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले जो पार्ट ए है वो क्या कहते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 50 डिविजिबल बाय 8। इसको 1 by 1 करते हैं हम। तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल स्पेस। सो सबसे पहला जो था द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 50 डिविजिबल बाय 8, यानी कि डिवाइड करेंगे हम 8 से, और डिविजिबल जब हम लिखा जाता है तो दैट मीन्स वी शुड गेट अ होल नंबर, नो फ्रैक्शंस। तो यहां पे हम लिखते हैं सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक तमाम नंबर्स जो कि 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 1 नहीं हो सकता, तो सबसे पहला नंबर जो 8 से डिवाइड हो और आंसर 1 आ जाए वो हो गया 8। सेकंड जो है 16, देन 24, 32, 40 एंड 48। अब 48 से आगे भी नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं, मगर वो 50 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने कहाँ से कहाँ तक जाना था, 1 से 50 तक। तो 1 से 50 के दरमियान ये 6 नंबर्स हैं जो कि 8 से डिवाइड हो सकते हैं, 8, 16, 24, 32, 40 एंड 48। एक सैंपल स्पेस आ गया आपके पास। नेक्स्ट, list the elements of each of the following sample space. Why? The problem now is the set S is equal to x such that x square plus 4x minus 5 is equal to 0. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट इंग्लिश में नहीं है, नंबर्स में नहीं है, इनइक्वालिटीज में नहीं है। इनइक्वालिटीज क्या थी, लेस देन और ग्रेटर देन वाली, वो भी नहीं है। इट्स एन इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आप मैथमेटिक्स के में है तो पता होना चाहिए हमें सबको कि ये इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4x minus 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यूज लिखनी है, यहाँ इस जगह पे x की वैल्यूज लिखनी है बेसिकली। और वो x किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस पॉलिनोमियल या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसके रूट्स निकाल लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम इसके रूट्स यूं लिख सकते हैं, हम 4x को अगर लिख लें 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपने सीखा हुआ है कि 4x को हमने लिखा 5x माइनस x। अब अगर इस इक्वेशन को हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें, कॉमन ले लें, फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन ले लें तो बनता है x प्लस 5 आता है। सेकेंड 2 इक्वेशन से -1 कॉमन ले लें तो अगेन x प्लस 5 आता है। इन दोनों टर्म से x प्लस 5 कॉमन ले लें तो पहली में x आएगा और दूसरे में -1 इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर्स हैं, x माइनस 5 प्लस इज अ नंबर एंड x माइनस 1 इज अगेन अ नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट अगर 0 हो रही है सो दैट इम्प्लाइज के या तो दोनों 0 हैं या दोनों में से कोई एक 0 है। तो अगर हम एज्यूम करें x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5। Similarly, if I assume x minus 1 is equal to 0, this implies x is equal to 1. So, अब हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारी जो है वो आ रही है -5, 1।
तो ये पूरी जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ -5 और 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। वो क्या था? द सेट S इज इक्वल टू x such as x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने जब यहाँ पे लिख लिया तो हमारी सैंपल स्पेस बन गई। इस तरह की और भी इक्वेशंस आपके पास आ सकती हैं डिफरेंट, उनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड until a tail or 3 heads appear। ट्री डायग्राम हम इस तरह बनाते हैं कि पहली दफ़ा हम यहाँ से शुरू होते हैं। फर्स्ट ट्रायल में हमारे पास अगर टेल आ गई तो वी स्टॉप्ड, क्योंकि उसने कहा कब रुकना है, जब टेल आ जाए। दूसरी ऑप्शन हमारे पास हेड आती है। जब हेड आया तो हमने दोबारा से टॉस करना है, और हेड में फिर हमारे पास दो ऑप्शंस आ सकती हैं, टेल भी आ सकती है और हेड भी आ सकता है। तो टेल आ गई तो वी स्टॉप बिकॉज अनटिल अ टेल कम्स, हमने रुक गए। जब हेड आया तो हमने दोबारा टॉस किया, सो वी गेट अ टेल और वी गेट अ हेड। अब अगर टेल आ गया तो वी अगेन स्टॉप्ड। अगर हेड आया तो हम आगे नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास 3 हेड्स आ चुके हैं। अब अगर हम सैंपल स्पेस लिखें, ये वाली जो है वो टेल है, इसको देखें तो टेल और हेड है, तो हेड एंड टेल। ये वाली जो है यहाँ पे, यहाँ से शुरू होते थे हम, हेड हेड एंड टेल, हेड हेड एंड टेल, और तीसरे में हेड 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 सॉरी एंड हेड, 3 एच आ गए यहाँ पे। सो हमारी सैंपल स्पेस बनती है टेल हेड एंड टेल, ये वाली, एंड देन हेड हेड एंड टेल, एंड देन हेड हेड एंड हेड। तो इस प्रॉब्लम को बेहतर है कि हम ट्री से ही कर लें, तो इजी लगता है, कोई चीज मिस नहीं होती। नेक्स्ट अप, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल स्पेस। S is equal to x such that A is a continent। rather ये यहाँ पे होना चाहिए x is a continent। तो हमने कॉन्टिनेंट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? बरे आजम जो है हमारे पास, हम सारे बरे आजम लिखें तो स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, then South America, then Europe, then Africa, then Asia, Australia, and Antarctica। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बरे आजम। तो यहाँ पे क्या था स्टेटमेंट, क्या थी? S सैंपल स्पेस इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ कॉन्टिनेंट। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल स्पेस। द सेट S is equal to x such that 2x minus 4 is greater than 0 and x is less than 1। अब ये जरा डिफरेंट है, जो अभी तक हमने किया वो हमने सिंगल इक्वेशन की थी, यहाँ पे 2 इक्वेशंस है और दरमियान में एंड है, यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। सो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि 2x minus 4 is greater than 0, ये इनइक्वालिटी है। तो अगर इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करें, दोनों तरफ 4 ऐड करें, 2x minus 4 plus 4 0 plus 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2x is greater than 4 and x is greater than 2। अब अगर दूसरी कंडीशन देखें वो क्या थी, x is less than 1। अब अगर नंबर लाइन पे देखें आप, तो अगर ये 1 है
और ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है नंबर लाइन पे, तो x लेस देन 1 वाली जो कंडीशन है वो क्या है, तमाम वैल्यूज जो कि 1 से छोटी हैं, और x ग्रेटर देन 2 वाली तमाम वैल्यूज जो x से बड़ी हैं। अब जो एंड है स्टैटिक्स में, हम इसको इंटरसेक्शन के तौर पे कंसिडर करते हैं कि दोनों कंडीशंस ट्रू हों, दोनों में मौजूद हो। तो अगर आप इनकी इंटरसेक्शन देखें तो ये एरिया तो खाली है, कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू नहीं होगी, ये ट्रू होगी तो पहली वाली ट्रू नहीं होगी। तो इसलिए हम कहेंगे S इज अ एम्प्टी सेट या नल सेट। नेक्स्ट अप कहते हैं यूज द रूल मेथड to describe the sample space S consisting of all points in the first quadrant inside a circle of radius 3 with center at origin। तो हमें क्या करना है, हमें एक sample space निकालनी है such that x, y हम दो चीजें लेंगे बिकॉज हम अब स्पेस में डील कर रहे हैं। Consists of all points in the first quadrant inside a circle of radius 3 such that x square plus y square is less than 9. Why we say such as कि यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को पढ़ें, a circle of radius 3, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं x और y कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूं, एक सर्कल हो जिसका रेडियस 3 है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये इस सर्कल की इक्वेशन है। अब अगर इक्वेशन दोबारा इसको स्टेटमेंट को पढ़ें कि S consisting of all points in the first quadrant, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। अब स्टेटमेंट क्या है, S consisting of all points in the first quadrant inside a circle of radius 3, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हों और इस सर्कल के अंदर अंदर भी हों, तो ये वो रीजन बनता है। तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है हुई, क्योंकि हमने सिर्फ ये लिखा है कि ये कंडीशन हमने ट्रू की है सिर्फ कि ये सर्कल से अंदर हो। दूसरा क्या था कि x should also be positive and y should also be positive and it should be, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 भी पॉजिटिव में कंसिडर होता है, इसलिए हम इक्वालिटी भी डालेंगे। x is greater than and equal to 0 and y greater than and equal to 0। सो ये हमारा रूल मेथड हो गया कि हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट किया। अगर इसी को दोबारा पढ़ें इसको, यूज द रूल मेथड टू डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस S consisting of all points in the first quadrant inside a circle of radius 3 with center at the origin। so फिर दोबारा अगर लिखें तो S is equal to x, y, that means दो वैल्यूज हैं, x भी होगा और y भी होगा की वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई कर रही हैं x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 9, जो कि 3 का स्क्वायर बनता है सर्कल को, और x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो ये हमारी टोटल रूल मेथड से हम ये सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करूं, मैं कहूं इन द
third quadrant, then S1 would be same thing, x y such that x square plus y square is less than 9 and थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो x is less than 0 and y is less than 0, यूं कर सकते हैं। तो दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इक्वल। तो सबसे पहले A is given as 1 3, which of the following events are equal। तो मैं लिखना शुरू करता हूं तमाम इवेंट्स को। A तो वही है 1 and 3, B is equal to x such that x is a number on a die। तो die जो है वो उस पे कौन से नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 and 6, तो B लिख लिया। C को देखें, इट इज x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम इधर साइड पे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया कि माइनस 4x को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, माइनस 3x और माइनस x। फर्स्ट में से x कॉमन लिया, x माइनस 3, दूसरे में से माइनस 1 कॉमन लिया विच इज x माइनस 3 अगेन इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन क्या बनती है x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x आइदर 3 के बराबर है या x 1 के बराबर है। तो C will be this thing x that such that x square minus 4x plus 3 is equal to 0. So we can write C as 1, 3, क्योंकि यहाँ पे हमने ये इक्वेशन सॉल्व की तो हमारे पास जो रूट्स आए ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 1 और 3 आ गए। Then we go to D which is x such that x is the number of heads with 6 coins are tossed when 6 coins are tossed। तो अगर 6 coins को हम टॉस करें तो ये हो सकता है कि किसी भी कॉइन पे हेड ना आए, फिर 6 में से 1 पे हेड आ जाए और 5 पे टेल आ जाए तो हमें 1 भी होगा। 6 में से 2 पे हेड आ जाए और 4 पे टेल आए तो 2 हेड्स, 3 हेड्स, 4 हेड्स, 5 हेड्स और 6 की 6 कॉइन्स हेड अप आ जाए तो उनको हम ये कहेंगे। अब ये A, B और C, D सैंपल स्पेस हैं, इवेंट्स हैं रादर जो हमने लिखे हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग इवेंट्स आर इक्वल। अब हमने देखना है कौन से दो इवेंट्स इक्वल हैं। तो A को अगर आप देखें वो 1 3 है और B इज अगेन 1 3। ये दो C 1 और 3 है, ये दोनों तो इक्वल हो गए, मगर अब B और D को देखें तो उसमें सिर्फ 0 का डिफरेंस है क्योंकि D में एक 0x भी एक एलिमेंट है। 0 इज नॉट अ नल सेट, रिमेंबर दैट 0 नल सेट नहीं है, ये इटसेल्फ एक एलिमेंट है। तो B और D नॉट इक्वल हैं और A और C जो हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं there are 4 students are selected at random from a chemistry class and classified as male or female. List the elements of the sample space S1 using the letter M for male and F for female. ये हम पहला जो पार्ट है यहाँ तक वो हम करते हैं कि हमारे पास 4 हमने स्टूडेंट्स लिए, हम S1 लिखते हैं तो हो सकता है 4 के 4 ही पहले मेल हों। सेकंड केस में 3 मेल हो जाएं, 1 फीमेल हो जाए, फिर मेल 2 फीमेल हो जाएं। इसी तरह
ये भी हो सकता था कि मेल मेल फीमेल मेल इस तरह भी हों, तो करते करते हमारे पास चारों की चारों फीमेल्स आ जाए। तो ये तो एक सैंपल स्पेस है और बाकी सारे भी एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं और इसका भी टी डायग्राम आप बना के भी ये काम कर सकते हैं। सेकंड जो सैंपल स्पेस है यहाँ पे, डिफाइन अ सेकंड सैंपल स्पेस S2 where the elements represent the number of females selected। तो पहले केस में देखें 0 फीमेल हैं, दूसरे में 1 है, इस वाले में भी 1 है, सो हम 1 ही रहने देंगे। फिर कुछ में 2 होंगी, कुछ में 3 होंगी और कुछ में चारों की चारों फीमेल ही होंगे। तो ये हमारे पास S2 बन जाता है। तो इसमें वेन डायग्राम से हमें इनको शेड करना है इन एरियाज को। तो सबसे पहले हम एक ही करते हैं, ये A इंटरसेक्शन B वाला। वो क्या है कि वी हैव अ सैंपल स्पेस जिसमें एक हमारे पास इवेंट A है एंड वी हैव अनदर इवेंट विच इज इवेंट B। तो कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, A इंटरसेक्शन B लेना है। तो A इंटरसेक्शन B तो ये आ गया और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ये सैंपल स्पेस है पूरी की पूरी, तो A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो तमाम एरिया होगा जो कि इस इंटरसेक्शन में नहीं होगा। तो ये भी शामिल है उसमें। ये जो वर्टिकल लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारा का सारा इस एरिया में शामिल है। तो स्वाय स्लैंडिंग लाइन वाले एरिया से इसके अलावा तमाम सैंपल स्पेस जो है वो इस एरिया में, ये जो अब शेडेड हो रहा है, इसके अलावा तमाम सैंपल स्पेस इसमें शामिल है। जैसा A यूनियन B आप ले सकते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं जो कि उसके बाहर हो। सिमिलरली इस केस में आप पहले A इंटरसेक्शन ही निकालेंगे, फिर उसका यूनियन लेंगे विद B। तो अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो let's say this is A, this is B and this is C। तो A इंटरसेक्शन C वाला ये रीजन बनता है, द फर्स्ट पार्ट वो ये रीजन बन जाता है। यूनियन B, तो B को इसमें ऐड करें तो फिर ये सारा का सारा प्लस ये टेल जो है ये भी बन जाएगा। तो अगर इसको मैं देखूं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसी तस्वीर को अगर देखूं तो वो ये बी वाला पूरा का पूरा और ए और सी का जो इंटरसेक्शन था ये सारा एरिया इस तरह से बनेगा। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। ये कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे या यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें हमने वेन डायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्टली करना है। तो ए यूनियन सी अगर देखें तो वो क्या बनेगा, गिवन ए इज 2 0 2 4 6 8 एंड सी इज 2 3 4 एंड 5। तो इन दोनों के अगर इंटरसेक्शन लें तो यूनियन लें तो 0 उसमें आएगा, 2 आएगा, 3 जो है वो सी से आएगा, 4 ए में और सी दोनों में मौजूद है, 5 सी में मौजूद है, 6 ए में मौजूद है और 8 ए में मौजूद है। तो ए यूनियन सी यूं लिख सकते हैं आप। ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे, ए और इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखें तो 0 बी में नहीं है, 2 ए का जो है वो बी में मौजूद नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। तो दैट मीन्स इट्स अ एम्प्टी सेट, या इसको हम जो बेहतर तरीका है 5 से रिप्रेजेंट करें। तो ए इंटरसेक्शन बी इज 5। क्योंकि एस भी गिवन है, सैंपल स्पेस गिवन है, तो आप सी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसी तरह ये बाकी भी किए जा सकते हैं। इसमें एक जो डिफरेंट है जो आपने पहले नहीं किया वो क्या है, एस इंटरसेक्शन सी,
कि S और C का इंटरसेक्शन लेना है। तो S हमारे पास सैंपल स्पेस है और C यह है, इन दोनों के अगर इंटरसेक्शन लें तो क्या होगा, क्योंकि C के तमाम, चलें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। A इंटरसेक्शन C में 2 S में मौजूद है, 3 भी S में मौजूद है, 4 भी S में मौजूद है और 5 भी मौजूद है। तो मैं लिखूंगा S इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5. X intersection C is 5, which is again C, क्योंकि तमाम का तमाम C इसमें आ जाता है। एंड कॉम्प्लीमेंट वो आप इसमें से माइनस कर लें तो C कॉम्प्लीमेंट ही बनता है ये, और वो बनता है S इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट 2, 3, 4, 5 के अलावा जितने एलिमेंट्स S में हैं वो लिखने हमने। 1, 0, 1, 3 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 5 नहीं लिखना, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये बन गया S इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। तो आज की समरी ये है कि हमने इवेंट्स डिस्कस किए, फिर कुछ ऑपरेशंस जो इवेंट्स पे किए जा सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, यूनियन ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट्स, ये हमने देखा। उसके बाद हमने वेन डायग्राम को स्टडी किया कि हाउ टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट द ऑपरेशंस इन इवेंट्स, वो हमने दिखाए आपको। और उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स की। इनकी रेफरेंसेस जो हैं वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल है, तो वो आप देख लीजिएगा। ये प्रॉब्लम, ये बुक में सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और थ्योरी भी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।